Hi students, good evening. Today I am going to start OC chapter number 4, that is business services. In that we have already finished the meaning of the business services and their features. Then we have started very first business services, that is a bank. Banking we have started. In that we study what is the types of bank, meaning of bank, types of bank, and today I am going to start function of the commercial bank. Question number third, function of the commercial bank. So we have studied different types of bank. In that we say that means bank means what? The function of the bank is called a bank. Bank is a financial institutions, and the bank means what? Any company that perform the function of banking in India. So banking function means what? This is a primary function which is called a banking function. Means what? Except is the deposit and granting the loans and advances. This is called a banking function. Along with that, the bank perform the different function which is called a secondary function. It is also known as a non-banking function. So today we are going to start the function of commercial bank. So students, the function of commercial bank broadly classified into two parts: primary function and secondary function. So primary function, that is also banking function, which already stated in the definition of the bank. In the definition of bank, we say that any company that perform the function of banking in India. So this is a banking. Means what? Except the deposit for the purpose of giving the loans and advances. So students, first of all I am starting primary function of bank. देखो बच्चों, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक क्या होते हैं? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आर नोन एज अ कोर बैंकिंग फंक्शन. कोर मीन्स व्हाट? मेन. जो बैंक का मेन फंक्शन है उसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस. कोर फंक्शन है जिसके लिए बैंक एक्चुअली स्टार्ट हुआ है. इफ बैंक डू नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन, इट इज नॉट कॉल्ड एज अ बैंक. भले वो ये फंक्शन करेगा, भले वो बैंक का नाम दिया है, लेकिन अगर वो ये फंक्शन नहीं करेगा उसको हम बैंक नहीं बोल सकते. So this is called a banking function. The primary function are as follow: accepting the deposit, granting the loans and advances. So here in the bank there is a deposit is accepted by bank, and bank give the loans and advances for the different purpose. So today we are going to study about that. So first of all, accept the deposit. How bank accept the deposit? देखो बच्चों, बैंक जो होता है, its primary source of the funding, that is accept the deposit. So banking function start with the accepting the deposit. बैंकिंग फंक्शन की शुरुआत डिपॉजिट के एक्सेप्टेंस से होती है. इफ देयर इज अ नो डिपॉजिट, द अदर फंक्शन ऑफ द बैंकिंग इज नॉट परफॉर्म. सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वेरी मस्ट फंक्शन ऑफ द बैंक. सो कमर्शियल बैंक कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस. देखो बैंक क्या होता है? दोनों से फंडिंग कलेक्ट. इंडिविजुअल मतलब क्या? कोई भी कॉमन पर्सन, सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन. एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस, जैसे अचीवर्स क्लासेस एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनीज, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस. The deposit can be classified into two types: time deposit and demand deposit. So deposit के भी दो types है बच्चों. They are the time deposit and demand deposit. As the name said, time deposit. Here the word time is what? Fixed period. So this deposit of the money for the fixed period, specific period of time, and is further classified into fixed deposit, recurring deposit. एंड डिमांड डिपॉजिट में शॉर्ट, जब आप मांगोगे, डिमांड करना जब आप मांगोगे, सो आप क्या करते हो? बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो. तो जब आपको जरूरत होती है, यू शुड बी विड्रॉ द मनी बाय मीन्स ऑफ द चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज. हमने देखो डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है? द फंड विच इज एक्सेप्ट द डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड विच इज अ विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, अदरवाइज. ऐसा हमने पढ़ा था. देखो, तो बैंक से हम क्या करते हैं? जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो आप विड्रॉ करते हो, ठीक है? डिपॉजिट किया हुआ पैसा जब आपको जरूरत होगी, यू कैन बी विड्रॉ इट. सो कब विड्रॉ करोगे? ऑन योर डिमांड. यहां पे कब विड्रॉ करोगे? ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ टाइम डिपॉजिट एंड दिस कॉल्ड अ डिमांड डिपॉजिट. जब आपको चाहिए तब आप पैसा बैंक में आपके अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट का पैसा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डिमांड डिपॉजिट. इट इज रीपेएबल ऑन योर डिमांड्स. दिस अमाउंट इज नॉट रीपेएबल ऑन डिमांड्स. व्हेन पीरियड इज एक्सपायर, टाइम पीरियड इज एक्सपायर, देन ओनली दिस अमाउंट इज पेड. ठीक है? So first of all, time deposit. Time deposit is called as a time deposit because they are repaid to the customer after the expiry of decided time. देखो बच्चों, मीन्स क्या बताया उसने? Time deposit means the deposit of money, which is repaid by bank. You deposit the money with the bank when you have the fund. When you need the fund, you should be collect money back from the bank. So when you collect the money from time deposit after expiry of specific period of time.
जो आपने डिसाइडेड टाइम है, जैसे अभी समझो मैंने क्या किया, बैंक में 1 साल के लिए पैसा जमा किया, सो जब 1 साल का पीरियड एक्सपायर होगा देन आई कैन बी विड्रॉ दी मनी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ टाइम डिपॉजिट। सो हियर टाइम डिपॉजिट व्हेन द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड, जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तभी वो पैसा क्या होगा, रिपे होगा। सो टाइम डिपॉजिट में क्या हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो हम पहला पढ़ते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज अकाउंट वेयर फिक्स अमाउंट इज केप्ट फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बेयरिंग द फिक्स इंटरेस्ट रेट। देखो इसमें सब फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है, ठीक है, फिक्स पीरियड के लिए फिक्स अमाउंट हम क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, और फिक्स इंटरेस्ट रेट, बैंक में जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो बच्चों उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। द अकाउंट होल्डर द डिपॉजिटर्स गेट द इंटरेस्ट, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, समझ में। सो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज अकाउंट वेयर द फिक्स अमाउंट इज केप्ट फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम वेयर द फिक्स इंटरेस्ट रेट, ठीक है। आपको लमसम, जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है तो लमसम में बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर दूंगा फिक्स पीरियड के लिए, ठीक है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड आई कैन बी गेट द मनी। Rate of interest is more as compared to saving account and to be the various other deposit with and vary with the deposit period। देखो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना सेविंग अकाउंट और दूसरे डिपॉजिट अकाउंट से सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एफडी पे मिलता है, डिपेंड ऑन डिपॉजिट पीरियड। अगर आप कम पीरियड के लिए पैसा डिपॉजिट करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, अगर आप हायर पीरियड के लिए पैसा डिपॉजिट करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलेगा। सो इट इज वेरा मींस चेंज विद द डिपॉजिट पीरियड फॉर विच पीरियड यू आर गोइंग टू डिपॉजिट द मनी। नॉर्मली विड्रॉ अमाउंट इज नॉट परमिटेड, देखो बोला मैंने इसमें आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, हाँ, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट में आप पैसा विड्रॉ नहीं, टेन्योर मतलब उस कालावधि में आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। सो बिफोर द मैच्योरिटी डेट, मतलब मैच्योरिटी डेट से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं, मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट, ड्यू डेट मीन्स द डेट ऑन विच अमाउंट पेएबल, ठीक है। However, the depositor can be withdraw the amount before maturity date for which bank will be reduce the interest rate। लेकिन अगर आपको अर्जेंसी है, इंपॉर्टेंट है, आपका एफडी में पैसा है लेकिन आपको बहुत अर्जेंट है, सो उस टाइम पे आपको पैसा विड्रॉ करने को अलाउ करेगा बैंक, लेकिन आपने उसको बोलते हैं एफडी को आपने ब्रेक कर दिया। तो अगर एफडी ब्रेक करोगे तो आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट आपका रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आपका पीरियड भी रिड्यूस हो गया। वैसे ही फॉर अमाउंट डिपॉजिट इन दिस अकाउंट अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशूड बाय बैंक। आपको प्रूफ क्या होता है, समझो मैंने 1 लाख रुपए मैंने आईडीबीआई बैंक में एफडी कर दिया, तो मेरे पास प्रूफ में क्या होगा, तो एफडीआई वो जो आईडीबीआई बैंक है एसबीआई बैंक है, देखो मैंने यहाँ पे एसबीआई का रिसिप्ट है, तो एसबीआई बैंक में समझो ये जो पर्सन है इसने क्या किया है, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, एफडी कर रखा है, तो जो एफडी का पैसा है वहां पे फिक्स हो गया फिक्स पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है देखो उसका पीरियड वैलिड फ्रॉम द 22 अप्रैल 2008 टू 22 अप्रैल 2013, मतलब कितने साल का एफडी किया उसने, 5 साल का एफडी दिया, दिख रहा है कि नहीं, ये पीरियड है। इसको बोल बच्चों देखो 22 अप्रैल 2008 से लेके 22 अप्रैल 2013 तक का जो ड्यूरेशन इसको बोलते हैं टेन्योर, और इसको बोलते हैं ड्यू डेट 22 अप्रैल 2013 आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स। सो दिस इज कॉल्ड अ मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट। तो इसी डेट पे आपको पैसा मिलेगा, समझ में। तो ये क्या है, आपका रिसिप्ट है जिसमें देखो डिपॉजिटर का नाम लिखा हुआ है, अमाउंट डिपॉजिट लिखा हुआ है, ठीक है। कितना टोटल लिखा है, 3 लाख रुपए उसने एफडी किया हुआ है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% मिल रहा है, देखो, ठीक है, 60 मंथ्स के लिए। तो इस तरह से क्या किया उसने, एफडी किया। फॉर द अमाउंट डिपॉजिट दिस अकाउंट डिपॉजिट रिसिप्ट मींस एफडीआर इशूड बाय बैंक अगेंस्ट दिस रिसिप्ट लोन कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक। आपके पास अगर समझो ये एक 3 लाख का डिपॉजिट रिसिप्ट है, आप इसको गिरवी रख के आप क्या बैंक से लोन ले सकते हो, आपको फंडिंग की जरूरत है तो। सो इट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या देखा अभी, इट द फिक्स अमाउंट डिपॉजिट फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड यू शुड बी गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई डिपेंड ऑन द टेन्योर ऑफ अ डिपॉजिट मींस पीरियड ऑफ डिपॉजिट। इफ द हायर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर विल बी द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो इससे क्या होते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, ठीक है। उसका सेकंड जो डिपॉजिट अकाउंट है दिस इज ऑल्सो टाइम डिपॉजिट। हम टाइम डिपॉजिट के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये भी रिकरिंग डिपॉजिट है। तो फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट में ज्यादा कोई फर्क नहीं बच्चों। फिक्स डिपॉजिट में हम फिक्स अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पे फिक्स अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं। कैसे डिपॉजिट करते हैं, इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट करते, थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट, दिख रहा है, थोड़ा 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 करके पूरा अमाउंट। समझो ये 1 लाख रुपए है, मैं उसमें 10 हज़ार जमा कर करके मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपया जमा करूंगा। तो धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, इसमें पैसा जमा होगा इंस्टॉलमेंट। मुझे 1 लाख, एफडी में कैसा होगा, पूरा 1 लाख रुपए में एक ही बार डिपॉजिट करूंगा, लेकिन आरडी में क्या होगा, हम क्या करेंगे, वो जो पैसा है पर्टिकुलर टाइम गैप में हम क्या करेंगे, पे करेंगे। इट्स ऑपरेटेड बाय सैलरी पर्सन। ये कौन ऑपरेट करता है,
सैलरी पर्सन, देखो सैलरी पर्सन क्या होता है, उसका फिक्स सैलरी होता है। एंड बिजनेसमैन हैविंग द रेगुलर इनकम, ऐसे लोग क्या कहते हैं मोस्टली रिकरिंग डिपॉजिट, रीऑकरिंग मतलब अगेन अगेन, जिसमें हम बार बार पैसा डिपॉजिट करते हैं। A certain fixed sum of the money is deposited into the account every month, हम फिक्स अमाउंट क्या होता है हर महीने डिपॉजिट करते हैं। कुछ लोग डेली बेस में भी करते हैं फिक्स रिकरिंग डिपॉजिट, लेकिन फिक्स अमाउंट करेंगे। जैसे समझो अभी मैंने क्या किया है, एक 1,20,000 का मैंने आरडी ओपन किया है, तो हर महीना मैं कितना डिपॉजिट करूंगा, 10,000 रुपये डिपॉजिट करूंगा, मतलब 12 महीने में टोटल कितना होगा, मीन्स 1,20,000 जमा होगा। तो अ फिक्स सम ऑफ मनी, फिक्स अमाउंट कितना है 10,000, कितने महीने के डिपॉजिट कर रहा हूँ, 12 महीने के, तो हर महीने 10-10 करूंगा, तो 12वें महीने में मेरे को कितना मिलेगा, 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा। विड्रॉ ऑफ द एक्यूमुलेटेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, देखो विड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। इसमें भी सेम है, जैसे मैंने 12 महीने के लिए आरडी ओपन किया है, तो 12वां महीना जैसे खत्म होगा वैसे मुझे क्या मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा। समझ में? तो कैसे मिलेगा, 10,000 रुपये जमा करते करते 12 महीने में 1,20,000 जमा हुआ, 1,20,000 प्लस आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा, ऑन दी मैच्योरिटी डेट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर इज सिमिलर टू द फिक्स डिपॉजिट, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है और मोर और लेस एकदम फिक्स डिपॉजिट के आसपास ही होता है। फिक्स डिपॉजिट में फिर भी ज्यादा होता है और आरडी में थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम वहाँ फिक्स डिपॉजिट में एक ही बार आप पैसा देते हो, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते हैं, इसलिए इसका थोड़ा जो इंटरेस्ट रेट है ना एफडी के कंपैरिजन में लगभग आसपास उतना ही होता है, लेकिन एफडी से ज्यादा नहीं होता। सेपरेट पासबुक प्रोवाइडेड टू नोन एज टू नो द पोजीशन ऑफ आरडी अकाउंट, देखो आपको अलग से पासबुक मिलता है और हर दिन उसमें जब भी आप पैसा डिपॉजिट उसमें एंट्री होगी। समझो ये महीना 10,000 जमा किया तो एंट्री हो जाएगी, फिर 10,000, फिर 10,000 की एंट्री होगी, टोटल 20,000 हो गया, फिर तीसरे महीने में फिर 10,000, टोटल 30,000 होगा। इस तरह से क्या होगा, एंट्री करने के लिए वहां पे आपको एक सेपरेटली पासबुक मिलेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसका वहां पे एंट्री होगा, जिससे आपको अकाउंट का स्टेटस मालूम पड़ेगा, पोजीशन मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आरडी। उसके बाद ये हो गया पहला टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में टाइम डिपॉजिट हमने कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे बी पार्ट, डिमांड डिपॉजिट। देखो बच्चों, डिमांड डिपॉजिट जो है, डिमांड डिपॉजिट दोज विच आर टू बी रीपेड टू द कस्टमर व्हेनेवर दे डिमांड। देखो ये नाम से मालूम है, जब आप डिमांड करोगे, जब आप मांगोगे, डिमांड करना मांगना, तो जब आप डिमांड करोगे, जब आप मांगोगे पैसा, आपका डिपॉजिट किया हुआ बैंक आपको रिपे करेगी पैसा। ठीक है, दैट मीन्स मनी कैन बी विड्रॉ एज पर द विश ऑफ द कस्टमर थ्रू द विड्रॉल स्लिप, चेक, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर। देखो आप वो पैसा जब आप चाहोगे आप विड्रॉ कर सकते हो ऑन एज पर दी योर विश, मतलब आपके विश, आपकी चॉइस के हिसाब से आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो, जब आपके नीड के हिसाब से विड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए आपको विड्रॉल स्लिप चाहिए, विड्रॉ स्लिप बैंक में अवेलेबल होता है, वहां से स्लिप फिलअप करने का और आप क्या कहते हो, डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो पैसा। या चेक के थ्रू, चेक बुक हर एक को बैंक, हर एक अकाउंट होल्डर को बैंक कहते हैं चेक बुक देती है, तो चेक बुक से विड्रॉ कर सकते हो। और एटीएम कार्ड, देखो ये जो पर्सन है एटीएम कार्ड से देखो पैसा विड्रॉ करे, जैसा आप एटीएम मशीन में क्या करते हो, एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो तो आपका होता है पैसा विड्रॉ होता है। या ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो। समझ में? सो डिमांड डिपॉजिट these are types of deposit in which from which the customer can be repaid their amount by the on their standing demand। ठीक है, उसके बाद देखो उसके टाइप्स कौन से, सेविंग और करंट, दो टाइप के। जैसे टाइम के दो टाइप थे, फिक्स और आरडी, वैसे यहाँ पे सेविंग और करंट डिपॉजिट है। सो सेविंग अकाउंट, it is generally operated by those who have the regular or fixed income such as salary or wages earner people। देखो मोस्टली जिसके पास पूरा खर्चा करने का थोड़े बहुत पैसे जो बच जाते हैं, ऐसे जो फिक्स इनकम करने वाले, अर्निंग करने वाले जो पर्सन है, स्मॉल सेविंग करने वाला जो पर्सन है, वो लोग क्या करते हैं, मोस्टली सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो अकाउंट होता है, दिस अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ द पर्सन। जैसे करंट अकाउंट किसी पर्सन के नाम से ओपन नहीं होता, वो कंपनी या बिजनेस के नाम से ओपन होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट किसके नाम से ओपन होता है, इन द नेम ऑफ द पर्सन। द मेन एम ऑफ दिस डिपॉजिट अकाउंट टू एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द पीपल्स। देखो लोगों के पास कितने पैसे भी रहो, वो पैसे कम ही पड़ जाते हैं, है कि नहीं, पैसे कम हो जाते हैं, मतलब पैसे कभी किसी को पूरते नहीं है। तो वैसे यहाँ पे अगर सुनिए मेरा सैलरी हो गया और मेरे पास पैसे बचे, फिर भी खर्चा करने के बाद मेरे पास पैसे बच गए, घर पूरा महीने का खर्चा करने के बाद भी पैसे बच गए, तो मैं और खर्चा करूंगा। लेकिन सेविंग अकाउंट रहेगा तो मैं जाके पैसा अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा। सो दिस अकाउंट इनकरेज माई सेविंग हैबिट। सो दिस डिपॉजिट अकाउंट आर मेंट फॉर पर्पज ऑफ मैक्सिमम सेविंग। इसमें इसका एक ही पर्पज है कि लोगों की सेविंग करने की आदत बढ़नी चाहिए, सेविंग बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेविंग जब बढ़ेगा तभी जाके इन्वेस्टमेंट होगा, तभी जाके देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगा। दे आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल लिमिट्स फ्रॉम दिस अकाउंट। देखो इस अकाउंट में एक चीज की कमी है, ये जो अकाउंट है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे विड्रॉल कभी भी कर सकते हो लेकिन लिमिट है।
मतलब महीने में आप इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो, 3 महीने में क्वार्टरली हम 25 टाइम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग बैंक के अलग अलग रहते हैं, समझ में। तो वो कहते हैं लिमिट्स होते हैं आपके पैसा विड्रॉ करने पे। दिस अकाउंट कैरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसका आरडी और फिक्स डिपॉजिट, एफडी और आरडी से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड मंथली, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, हर महीने में जितना बैलेंस रहेगा उसका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जाएगा, या फिर क्वार्टरली, क्वार्टर मतलब एवरी 3 मंथ्स एंड हाफ ईयर में 6 मंथ्स, या ईयरली बेसिस ऑन योर अकाउंट। जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट आपको लो रेट से मिलेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट आपको मंथली भी मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है, हाफ ईयरली मिल सकता है और ईयरली मिल सकता है, डिपेंड ऑन द बैंक। ठीक है, सो सेविंग अकाउंट, दिस अकाउंट इज हेल्प्स टू द इनकरेज द सेविंग हैबिट अमंग द पीपल। ठीक है, और ये बैंक, ये जो अकाउंट है इसमें कमी क्या है, देखो यहाँ पे विड्रॉल में रिस्ट्रिक्शंस है। तो अभी जो ये जो लिमिटेशन है ना बच्चों, रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल, ये लिमिटेशन की वजह से हमारे पास दूसरा अकाउंट आ जाता है, करंट अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट में और क्या बताया, देखो सेविंग अकाउंट में पासबुक फैसिलिटी, आपको इस अकाउंट में पासबुक फैसिलिटी है, बैलेंस ऑन एसएमएस आप ले सकते हो, अकाउंट का स्टेटमेंट आपको मिल सकता है। ये पासबुक है, दिख रहा है कि नहीं, पासबुक में हम क्या करते हैं, कितना पैसा डिपॉजिट, कितना पैसा विड्रॉल, वो देखते हैं। ठीक है, facility are provided to account holders to the ascertain the financial position. For a saving account holder, some bank provides a separate facility, flexi deposit. देखो flexi deposit होता है, flexi deposit मतलब क्या है, आप आपकी चॉइस के हिसाब से पैसा में स्वैप कर सकते हो, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ट्रांसफरेबिलिटी हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है। दिस फैसिलिटी कंबाइन द एडवांटेज ऑफ सेविंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट। देखो ये जो फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट है ना, ये आपको दोनों फैसिलिटी देता है, सेविंग की प्लस फिक्स डिपॉजिट की, दोनों की। समझो अभी आपको 2 अकाउंट, इसको मल्टीपल अकाउंट भी बोल सकते हैं, समझ में। सो दिस इज नॉट अ सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट, ये कोई सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट है, दोनों भी एक ही है। इट इज टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट विद द स्पेशल फीचर्स एंड बेनिफिट। एक सेविंग अकाउंट को भी ये फैसिलिटी मिलती है फ्लेक्सी डिपॉजिट की, और करंट अकाउंट को भी फ्लेक्सी डिपॉजिट की। और ये जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो होते हैं ना, इनका लिंक किससे होता है बच्चों, एफडी से होता है, समझ में। तो कैसे होता है, देखो यहाँ पे देखते हैं, इन केस ऑफ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, इसको मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट बोल सकते हैं। द एक्सेस अमाउंट आफ्टर द पर्टिकुलर लिमिट गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, अभी हमने बताया ना फ्लेक्सी डिपॉजिट का लिंक किसके साथ होता है, सेविंग अकाउंट का लिंक एफडी से हो गया, या सेविंग अकाउंट का करंट अकाउंट का लिंक एफडी से हो गया। तो सेविंग अकाउंट में एक लिमिट के बाद जब पैसे आपके पास आएंगे, हाँ, तो वो लिमिट पूरा होने के बाद आप क्या कहते हो, उसके एक्सेस अमाउंट डायरेक्ट एफडी में चला जाएगा। क्योंकि पैसा देखो, अभी समझो मेरे पास मेरा मंथली खर्चा होता है, समझो 30,000 रुपये, समझो मंथली खर्चा है मेरी सैलरी है 50,000, उसके बाद 30,000 खर्चा होने के बाद, और जो ऊपर का जो 20,000 रुपये है, ठीक है, अभी मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया, भाई मेरा महीने का खर्चा 30,000 होता है, 30,000 के ऊपर जो भी बैलेंस होगा डायरेक्ट एफडी में डाल देना। अगर वो 20,000 रुपये मैं सेविंग में रखूंगा तो अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो मैं क्या करूँ, ऑप्शन ले लिया मैंने, फ्लेक्सी डिपॉजिट का ऑप्शन ले लिया, मल्टीपल ऑप्शन का। तो मेरा क्या होगा, 30,000 के ऊपर जैसे बैलेंस जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा, समझ में। सो इन केस ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट द एक्सेस अमाउंट आफ्टर द सर्टेन लिमिट गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट व्हेन एडुकेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑनर द पेमेंट और चेक इस इन द सेविंग अकाउंट, फंड गेट ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट सेविंग अकाउंट। समझ में, जैसे अभी मैंने बोला, देखो मेरा सैलरी 50,000 था, 50,000 मेरे अकाउंट में आ गया, उसके बाद मैंने महीने का खर्चा किया 30,000 रुपया, तो ऊपर का जो पैसा है 20,000 रुपया वो डायरेक्ट एफडी में चला जाएगा। मैंने बैंक को बोल के रखा, भाई 30 के ऊपर जैसे मेरा खर्चा है, समझो मैंने मेरा एस्टिमेट किया, मेरा महीने का खर्चा 30,000 होता है, तो 30,000 के ऊपर जब बैलेंस चला जाए, 30,000 के ऊपर जितना भी बैलेंस होगा वो आप एफडी में डाल दो बोला। लेकिन अभी समझो ये मैंने, मेरा खर्चा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, 35,000 रुपये खर्चा हो गया, तो 30,000 के ऊपर तो डायरेक्ट एफडी में चला गया, फिर उसके बाद मेरा चेक क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, एफडी से पैसा डायरेक्ट 5,000 रुपया फिर से सेविंग में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन या फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट। समझ में बच्चों। सो फ्रॉम द, देखो क्या लिखा है, व्हेन एडुकेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल द ऑनर द पेमेंट। देखो मेरे पास क्या होगा, 30,000 के ऊपर का पैसा था, सब एफडी में चला गया, तो मेरे पास 30,000 है, लेकिन मेरा खर्चा इस बार 35,000 हो रहा है, तो एडुकेट फंड नहीं है फिर, तो उस टाइम पे सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे फंड गेट ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है ये आपका अकाउंट है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से हायर अमाउंट जो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद मिस, वो पैसा क्या होगा, एफडी में चल जाएगा, और कल को आपके पास पैसे कम पड़ते हैं तो एफडी से पैसा किधर चल जाएगा, फिर से सेविंग में चल जाएगा। इसको ऑटो स्वीप अकाउंट भी बोल सकते हैं, या एफडी रिटर्न फ्रॉम सेविंग अकाउंट, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिपॉजिट अकाउंट है करंट डिपॉजिट। ठीक है, अभी सेविंग अकाउंट में एक लिमिटेशन थी, विड्रॉ की लिमिटेशन। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में था कि आप पैसा कितना भी पास डिपॉजिट करो, लेकिन विड्रॉ करने को आपको लिमिट है।
तो जो लिमिट है विड्रॉ करने का, ठीक है, उसके वजह से बिजनेसमैन को जो अकाउंट है वो बिजनेसमैन के लिए कन्वीनियंट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। अगर वो बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट ओपन करेगा तो क्या होगा, बिजनेस के ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस में दिन में हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, महीने में हजारों लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, मेनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर हम उसके ऊपर लिमिटेशन डाल देंगे तो बिजनेसमैन वो क्या करेगा, सेविंग अकाउंट उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। एफडी तो उसके लिए बेनिफिशियल, आरडी भी बेनिफिशियल नहीं होगा, तो सिर्फ डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन पेमेंट करने का जब टाइम आता है, तो विड्रॉ करने का जब टाइम आता है, तो सेविंग अकाउंट भी सुटेबल नहीं है, फिक्स भी सुटेबल नहीं है बिजनेसमैन के लिए, आरडी भी सुटेबल नहीं है। तो उसके लिए सुटेबल कौन सा है, करंट अकाउंट। क्योंकि करंट अकाउंट का एक यूनिक फीचर ये है, इसमें फ्रीक्वेंट डिपॉजिट, फ्रीक्वेंट विड्रॉल, दिख रहा है कि नहीं। फ्रीक्वेंट डिपॉजिट, आप कितनी बार भी पैसा डिपॉजिट करो और कितनी बार भी पैसा विड्रॉ करो, ठीक है। मिनिमम एवरेज बैलेंस की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होता है, नेट बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है, और बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विस, वो ड्राफ्ट वगैरह इसमें मिलता है आपको, ठीक है। So this account is operated by the business firm and to the other commercial organizations such as a hospital, education institute, etc. ठीक है, कोई भी कंपनीज हो गए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, ये लोग के नाम से वो अकाउंट ओपन होता है। जैसे इसमें किसी पर्सन के नाम से अकाउंट, जैसे दिलीप के नाम से अकाउंट ओपन नहीं होगा, अचीवर्स कॉमर्स क्लास के नाम से यहाँ पे अकाउंट ओपन होगा, करंट अकाउंट। समझ में हुआ तो रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। और ऐसे लोग का बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है रेगुलर, वो पैसा डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ, मींस दे हैव द रेगुलर ट्रांजेक्शंस। देखिए सैलरी वाले पर्सन का रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं होता, उसका एक फिक्स अमाउंट सैलरी आता है और फिक्स पेमेंट होते हैं उनके, उसके ऊपर कोई ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते सैलरी वाले, ठीक है। दिवाली में एक हाथ कोई ज्यादा परचेस करे, इसलिए वो सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन बिजनेसमैन का ऐसा नहीं है, दे हैव द मेनी ट्रांजेक्शन इन अ डे, so that's why to regular banking transaction they have to prefer the current account. So in this account there is a no restriction on deposit and withdrawal of the accounts, ठीक है। मतलब frequent deposit, frequent withdrawal, frequent मतलब अगेन बार बार, no interest rate is paid by the bank in this account, इसलिए इस अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। रीजन क्या है, क्योंकि आपका मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपके पास रहता ही नहीं है। अभी आपने 1 लाख डिपॉजिट किया, तुरंत आपने विड्रॉ किया, मतलब मिनिमम बैलेंस है ही नहीं, तो आपको बच्चों उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उसमें आपको एक फैसिलिटी और मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल दिस अकाउंट। ये एक तरह का लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है। जैसे बिजनेसमैन को कभी भी अर्जेंट फंड की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, कभी कभी उसके अकाउंट में माइनस में बैलेंस है, मतलब जीरो बैलेंस होता है, तो ऐसे टाइम पे उसको एक ऑप्शन होता है और उसको इंस्टेंट पेमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, तो ऐसे टाइम पे फिर उसको हेल्प करने के लिए कौन सा फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट। ओवर मींस एक्स्ट्रा, ड्राफ्ट मतलब विड्रॉ। आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर सकते हो, पर्टिकुलर लिमिट जिसका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आगे क्वेश्चन है, ठीक है। तो करंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी मिलती है। फॉर करंट अकाउंट बैंक प्रोवाइड द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट एवरी मंथ। इसके लिए पासबुक वगैरह नहीं यूज होता है, इसके लिए क्या होगा, बैंक आपको एक स्टेटमेंट दे देता है, समझ में। इसमें एटीएम वगैरह फैसिलिटी भी मोस्टली नहीं देते, क्योंकि करंट अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट है, ठीक है। इसमें हम चेक बुक से पेमेंट किया जाता है बच्चों, इसमें आपको पासबुक नहीं होता, इसमें आपको क्या मिलता है, बैंक का स्टेटमेंट हर महीने आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट। इट इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द बिजनेसमैन हु हैविंग द फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन ऑफ विड्रॉ एंड डिपॉजिट ऑफ मनी, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड प्राइमरी फंक्शन में, अभी प्राइमरी फंक्शन का ए पार्ट हमने फिनिश किया, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हमने पढ़ा, बैंक एक्सेप्ट द 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट एफडी, आरडी, डिमांड डिपॉजिट एसडी, सीडी, ठीक है, मतलब सेविंग एंड करंट डिपॉजिट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रांटिंग द लोन्स एंड एडवांसेस। अभी जो पैसा डिपॉजिट में आया है, बैंक अगर वो पैसा वैसे ही रखेगा तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट आपको पे ही नहीं कर पाएगा। तो जैसे आपसे डिपॉजिट आया तुरंत उसको क्या करना है, बैंक ने लोन दे देना है, क्योंकि जब वो लोन देगा तभी जाके उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि बैंक का वही तो प्रॉफिट होता है, वही बैंकिंग बिजनेस है। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, गिविंग द लोन्स एंड एडवांस, जो आपसे डिपॉजिट ले रहे उससे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। आप लोन लेने जाओगे, बैंक आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। तो जो लोन का जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो डिपॉजिट का लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक के लिए बच्चों प्रॉफिट है। वही तो बैंकिंग बिजनेस का प्रॉफिट होता है जिसके लिए बैंक स्टार्ट हुआ है। सो ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक ग्रांट्स द लोन्स एंड एडवांसेस टू द बिजनेस फर्म एंड अदर हु आर नीड ऑफ द फंड। देखो जिसके पास एक्सेस फंड था उससे उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, और जिसको फंडिंग की जरूरत है उसको उसने लोन दे दिए। द बैंक आर प्रोवाइड द लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 1 ईयर एंड मोर। देखो बैंक के पास अलग अलग पीरियड के लिए लोन मिलता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जैसे आपकी जरूरत है। एडवांसेस आर प्रोवाइडेड फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 4 months to the 1 years। और एडवांसेस जो होता है बच्चों शॉर्टर पीरियड, लोन 1 years उसके अब हो जाते हैं, और लेकिन जो एडवांसेस हो इट इज फॉर दी 4 months to 1 years। द एडवांसेस आर गिवन फ्रॉम द कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग। ये 3 टाइप के एडवांसेस आपको मिलते हैं। और लोन तो लोन के
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ऐसे लॉन्ग टर्म, ऐसे 3 टाइप के टर्म के लोन भी मिलते हैं, ठीक है। टर्म लोन और प्लस एडवांसेस आपको मिलते हैं। सो ग्रांटिंग द लोन्स एंड एडवांसेस, समझ में आया। बैंक द डिपॉजिट कलेक्टेड बाय बैंक नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रांटिंग द लोन्स एंड एडवांसेस। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोन। So the commercial bank provide the loan to the businessman and the others who is in need of the fund. The borrower can use entire amount of sanction or can be withdraw in the installment. देखो जैसे आपने मैंने 1 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई किया, तो जब लोन अप्रूव हो जाता है उसको बोलते हैं लोन का सैंक्शन होना, ठीक है। लोन क्या हो गया, सैंक्शन हो गया, आपका अप्रूव्ड हो गया। फिर उसके बाद जैसा सैंक्शन हो गया 1 लाख का, तो मैं चाहूँ तो 1 लाख रुपए एक ही बार विड्रॉ कर लूंगा और मैं क्या करूंगा, पैसा यूज कर दूंगा। या तो मैं क्या करूंगा, उसमें से जरूरत के हिसाब से पैसा मैं विड्रॉ करूंगा अप टू 1 लाख रुपीज। समझे, अभी 20,000 की जरूरत है, 20,000 विड्रॉ करूंगा, बचा 80,000, फिर मुझे और जरूरत पड़ेगी और 40 निकाल दूंगा, तो बचा कितना, 40,000 बच गया। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, पैसा विड्रॉ करूंगा इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अमाउंट सैंक्शन, लेकिन आप भले विड्रॉ करो या मत करो, जैसे आपको लोन सैंक्शन होगा ना बच्चों, उसी दिन से आपको इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। लोन की बहुत बड़ी खासियत है। लोन जैसे आज सैंक्शन हो गया 1 लाख रुपए का, आप विड्रॉ करो या मत करो, आपको इंटरेस्ट पे करना है, अमाउंट सैंक्शन। आपको जितना लोन का अमाउंट सैंक्शन हो गया, आप कितना विड्रॉ करते हो वो नहीं देखेंगे, जितना आपको सैंक्शन हो गया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। लोन आ रहा है फॉलो, जैसे शॉर्ट टर्म लोन अप टू 1 ईयर्स, मीडियम टर्म लोन 1 to 5 ईयर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन अबोव 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स और मोर के पीरियड के लिए आपको लॉन्ग टर्म लोन मिलता है, ठीक है। अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म अलग पर्पस है, शॉर्ट टर्म के लिए हम वर्किंग कैपिटल लेते हैं, मीडियम टर्म के लिए हम क्या आते हैं, रिपेयर रिन्यूअल रिनोवेशंस करने के लिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म टू परचेज द न्यू एसेट्स, न्यू फैक्ट्री, उसके लिए लॉन्ग टर्म फंड लगता है, ठीक है। So loan first, short term loans for the period of up to 1 years to meet the working capital requirement for the borrowers. देखो शॉर्ट टर्म फंड किसके लिए होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए। उसका पीरियड क्या होता है, अप टू 1 ईयर्स, मतलब बिलो 1 ईयर्स अप टू 1 ईयर्स, मतलब 1 साल के ऊपर जाता नहीं है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना, उसके ऊपर नहीं जाता शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। उसको किससे लगता है, सेल टू कस्टमर, ऑर्डर द स्टॉक, ठीक है, स्टॉक ऑन सेल, पे द सप्लायर, पेड ओवरहेड्स, ओवरहेड मतलब क्या, एक्सपेंसेस, बिजनेस के रोज के खर्चे, वो सब के लिए इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, रोज के कामकाज के लिए पैसा लगता है। उसका मीडियम टर्म लोन्स आर फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर टू 5 ईयर्स। 1 ईयर टू 5 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है उसको बोलते हैं बच्चों मीडियम टर्म पीरियड्स, ठीक है। वो किस लिए होता है, मीन्स जो सस्ते एसेट्स होते हैं, हाँ, लूज टूल्स होते हैं, उसको परचेस करने के लिए यूज होता है, या फिर जो माइनर रिपेयर्स और रिन्यूअल्स, रिनोवेशंस, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ऐसे काम के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला लोन लेते हैं मीडियम टर्म, ठीक है। सो मीट द वर्किंग कैपिटल एज वेल एज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरो, दोनों भी कर ले रहा है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों भी पूरा कर रहा है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, फिक्स कैपिटल की जरूरत, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, फिक्स कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन मिलता है, हाँ, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और मोर टू मीट द लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द बोरोस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल जैसे परचेस ऑफ इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, ये पैसे, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और वो पैसे तुरंत हम रीपे नहीं कर सकते, इसलिए हमको लॉन्ग टर्म लोन लेना पड़ता है। अभी देखो मटेरियल खरीदा है, मटेरियल हमको एक 10-20 लाख का नहीं खरीदना पड़ता है, 2-3 लाख का खरीदना पड़ता है, या 20-30 हज़ार का खरीदना पड़ेगा, तो हम उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, अपन तुरंत चुकता कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं लोन को, समझ में। तो दैट्स वाई मीन्स द अमाउंट ऑफ लोन, इसमें अमाउंट ऑफ लोन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए लॉन्गर पीरियड के लिए लोन लेना पड़ता है, समझ में। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड एज पर द नीड, एज पर द अमाउंट ऑफ लोन, द लोन इज ग्रेडेड इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। अब ये हो गया लोन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एडवांसेस। सो एडवांसेस आर स्मॉल टर्म फंड, एक शॉर्ट टर्म फंड का है, प्रोवाइड टू द बिजनेसमैन टू सैटिस्फाई डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। एडवांसेस आर एज फॉलो, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंट ऑफ बिल, ये सब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। देखो कैसे होते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं एडवांस में कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एडवांसेस आर प्रोवाइडेड टू द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर, दोनों को मिलता है सीसी, ठीक है, कैश क्रेडिट, ठीक है। आपको देखो क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू होता है, इसको क्या सीसी के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आपका समझो मेरा IDBI में अकाउंट है, लेकिन मैं सीसी SBI से भी ले सकता हूँ, ठीक है, तो कहीं से भी हम सीसी ले सकते हैं। टू प्रोवाइड द वर्किंग कैपिटल फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसकी जरूरत पड़ती है। इंटरेस्ट रेट इज हायर ऑन सीसी, इंटरेस्ट रेट आपको हायर मिलता है। सेपरेट सीसी अकाउंट हैज टू मेंटेन बाय द बोरोवर्स, इसके लिए आपको सेपरेटली एक सीसी अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये जो सीसी है ना तो आपको सेविंग अकाउंट में मिलेगी, ना तो करंट अकाउंट में मिलेगी, लेकिन दोनों अकाउंट होल्डर को मिलेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। अभी मेरा सेविंग अकाउंट IDBI में, लेकिन सीसी में कहाँ से ले रहा हूँ, SBI से भी ले सकता हूँ,
ठीक है। तो कैश क्रेडिट, समझ में आया? तो इसमें भी कैसा होता है, एक अमाउंट का लोन आपको सैंक्शन होता है, जैसे मुझे 1 लाख का लोन सैंक्शन हो गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो सीसी में, हाँ मीन्स जितनी मेरे को पैसे की जरूरत है वो 1 लाख में से विड्रॉ करूंगा। तो मुझे सैंक्शन हुआ है 1 लाख का, तो मुझे 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं पे करना है, मुझे किस पे इंटरेस्ट पे करना है, जितना पैसा मैं विड्रॉ करूंगा सीसी में, समझ में? सो दिस इज अ मीन्स मीनिंग ऑफ सीसी, समझ में? कैश क्रेडिट। तो ये भी ओवरड्राफ्ट जैसा होता है, सिर्फ फर्क कैसा है, ओवरड्राफ्ट हमको क्या मिलेगा, सेविंग और सॉरी करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, लेकिन सीसी क्या होता है, मिस जरूर नहीं आपको दोनों अकाउंट होल्डर को मिलता है, इसके लिए आपको सेपरेटली सीसी अकाउंट ओपन करना पड़ता है, करंट अकाउंट के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा, समझ में? उसके बाद ओवरड्राफ्ट, देखो दिस फैसिलिटी ऑफर टू द करंट अकाउंट होल्डर टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये भी एक तरह का लोन है और वो रोज के वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए ये फंड, यहाँ से आपको फंड मिलता है ओवरड्राफ्ट से। द पीरियड कैन बी वेराई फ्रॉम 15 डेज टू 60 डेज, मतलब 15 दिन से 60 दिन तक के लिए आपको यहाँ से ओवरड्राफ्ट मिलता है। मैक्सिमम पीरियड ओवरड्राफ्ट का 3 मंथ्स का भी होता है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन, जैसे अभी पता है ना, जितना अमाउंट आप विड्रॉ करोगे उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लोगे, ठीक है। अभी 1 लाख आपको ओडी मिला, लेकिन आपको जरूरत 10,000 की है, तो 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं पे करना आपको। आपने कितना अभी यूज किया 1 लाख में से 10,000, सो यू हैव ओवरड्राफ्ट रुपीज 10,000, 10,000 आपने ओवरड्राफ्ट किया है, तो ओवरड्राफ्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। देखो अभी कैसा, एक्सेस अमाउंट जितना आपने विड्रॉ किया उसके ऊपर ही उसी ड्राफ्ट पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, चार्जेस पे करने हैं, समझ में? इंटरेस्ट चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ, नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन। इसके लिए जैसे सीसी में सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, यहाँ पे सेपरेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी गेट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अगेंस्ट में मिलता है। एंड द एंट्री आर शोन इन द करंट अकाउंट, समझ में? ये देखो ये करंट अकाउंट का पासबुक है, उसी में सारी एंट्रीज हो जाएंगे। इट्स अ टेम्पोररी अरेंजमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, ये टेम्पोररी अरेंजमेंट है। देखो बिजनेसमैन को बिजनेस करते करते कभी कभी अचानक फंडिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे ये हेल्पफुल होता है उनके लिए, समझ में? तो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है, टेम्पोररी अरेंजमेंट है टू मीट द देयर शॉर्ट टर्म एंड अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर द बिजनेसमैन, ठीक है बच्चों। उसके बाद एडवांसेस में थर्ड ओवरड्राफ्ट का देखो जरा यहाँ पे दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट कैसा है, जैसे समझो अभी ये मिस्टर माइक है, उसने क्या किया, बेली से क्या किया, मटेरियल परचेस किया, ठीक है, $5,000 का मटेरियल परचेस किया, और उसने क्या किया, बेली को क्या कर दिया, उसने चेक हैंड ओवर किया, 5,000 का चेक दिया, बैंक बेली ने जाके बैंक में चेक डिपॉजिट किया, किसके, माइक के बैंक में जाके चेक डिपॉजिट किया, लेकिन माइक के पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो उस टाइम पे चेक क्या होगा, बाउंस हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी तो बैंक विल बी पे द अमाउंट, फुल अमाउंट ऑफ, ठीक है, जितना भी अमाउंट है 5,000 पूरा का पूरा पेमेंट कर देगा। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ ओवरड्राफ्ट, समझ में? देखो बिली ने क्या किया, माइक को गुड्स बेचा, उसके बदले में माइक ने क्या किया, उसको चेक दे दिया $5,000 का, लेकिन बिली माइक के अकाउंट में पैसे नहीं थे बैंक में, तो उस टाइम पे बैंक ने क्या किया, लेकिन उसने ओवरड्राफ्ट लेके रखा था माइक ने, तो उसका पैसा पूरा पेड होगा। अगर ओवरड्राफ्ट नहीं होता तो उसका पैसा बाउंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद एडवांसेस, थर्ड पार्ट है एडवांसेस में, सी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। द ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा था, अभी आपको एक लेसन भी है, किसी किसी के कॉलेज में बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट भी हो गया रहेगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा था, इट इज अ प्रॉमिसरी नोट फॉर द क्रेडिट सेल, एक प्रॉमिसरी नोट है जो क्रेडिट सेल के लिए बनाया जाता है। जैसे अब समझो मैं दिलीप है, मैंने क्या किया, राजेश को क्या किया, मिस उधारी पे 1 लाख का गुड्स बेचा, तो राजेश से मैं क्या करूंगा, प्रॉमिसरी नोट लिख के ले लूंगा, उसको बोलते हैं बिल, ठीक है। उसने राजेश ने मेरे से कितने महीने का क्रेडिट मांगा, समझो 3 महीने का क्रेडिट मांगा, तो 3 महीने तक मेरा पैसा 1 लाख रुपया राजेश के वहां ब्लॉक हो गया। तो लेकिन मुझे 3 महीने के पहले अर्जेंट फंड की जरूरत है, तो उस अर्जेंट फंड की जरूरत को पूरा करने के लिए मैं बैंक को बिल क्या करूंगा, सेल कर दूंगा, डिस्काउंट में सेल करूंगा और उससे पैसा ले लूंगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। द ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो ड्रॉवर मतलब बिल जिसने बनाया है, सेलर, ड्रॉवर मतलब सेलर, और बेनिफिशियरी कैन डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, ठीक है। अभी राजेश ने मेरे को क्या किया, बिल ड्रॉ करके दिया, मतलब प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया कि भाई मैं दिलीप से इतने का गुड्स परचेस किया है, उसके 1 लाख का गुड्स परचेस किया, उसका पैसा मैं 3 महीने के बाद दूंगा, तो मेरा एक रिटर्न प्रॉमिस उसका मेरे पास है, तो वही वो उस पैसे का बेनिफिशियरी मैं हूँ, कौन, दिलीप, वो कौन है, रिसीवर है वो पैसे का। सो बेनिफिशियरी डिस्काउंट, तो अभी मुझे अर्जेंट फंड की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, वो बिल जाके डिस्काउंट करूंगा विद द बैंक एंड ऑब्टेन द एडवांस, और बैंक से एडवांस ले लूंगा। 1 लाख का पैसा, 1 लाख रुपए जो मुझे 3 महीने के बाद मिलना था, बैंक को बिल देके वो पैसा मैंने ले लिया, उसके बदले बैंक ने कुछ चार्जेस कट किया, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट।
ऑन द ड्यू डेट द बिल, जैसे उसका ड्यू डेट 3 महीने पूरे होंगे, जो ड्रॉवी है मिस्टर राजेश है वो जाके बैंक को पैसा दे देगा। द बैंक विल बी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ड्रॉवी, राजेश से रिकवर कर लेगी। कितना रिकवर? 1 लाख। बैंक ने मेरे को कितना दिया? 98,000। तो बैंक को कितना फायदा हो गया? 2,000। समझ में? क्योंकि बैंक को जब मैंने बिल दिया तो बैंक ने माइनस करके दिया अमाउंट 2,000, 98,000 मुझे दिया, और राजेश ने ड्यू डेट पे कितना दिया उसको? 1 लाख। तो 2,000 क्या होगा? बैंक का फायदा। तो कैश योर अनपेड इनवाइस, इनवाइस मतलब बिल, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आपने बिल दे दिया, इनवाइस मतलब होता है बिल, बिल आपने बैंक को दिया, बैंक ने आपको पैसे दे दिए। ठीक है बच्चों, तो इट इज़ अ कोलेटरल फ्री शॉर्ट टर्म लोन है बिल डिस्काउंटिंग। समझ में? तो ट्रेड फाइनेंसिंग एक ट्रेड का फाइनेंस है, ट्रेड फाइनेंसिंग बोल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या होता है? एक कैश फ्लो मिल जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है कैसे होता है। जैसे सेलर है, सेलर ने क्या किया? बायर को गुड्स बेचा। ठीक है, तो बायर ने क्या किया? इसको बिल दे दिया। तो सेलर क्या करेगा? सेलर क्या करेगा? ये जो बिल है मीन्स एडवाइजिंग बैंक को बिल दे देगा, बैंक क्या करेगा? वो बिल क्या करेगा? सेलर बैंक को दे देगा, और उससे क्या करेगा? पैसे कलेक्ट करके इसको दे देगा। समझ में? सो दिस कॉज द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बच्चों, तो आज के प्राइमरी फंक्शन में, ठीक है, अभी देखो फंक्शन ऑफ बैंक में हमने अभी प्राइमरी फंक्शन पढ़े हैं। प्राइमरी फंक्शन में मीन्स हमने एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, गिविंग द लोन्स एंड एडवांसेस, ये हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़ा है। सेकेंडरी फंक्शन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, समझ में, जिसको हम नॉन बैंकिंग फंक्शन बोलते हैं। समझे बच्चों? थैंक यू बच्चों।